اسلام آباد کیمپس. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ ایک انٹرویو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ نیو گیسٹ موجود ہوتے ہیں. تو آج بھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سونیا. ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے چند سوال کریں گے. تو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے الحمد للہ بالکل خیر وعافیت سے. تو میڈم میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے شارٹ سے انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ جو آڈینس آپ کو نہیں جانتے وہ جان سکیں. اوکے میرا نام سونیا غزل ہے. میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. وہاں پہ پڑھتی ہوں, ٹریننگ لے رہی ہوں اے آئی کی. اور میں یہاں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں. بیسیکلی ملتان پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں یہاں اسکول انٹرنیشنل میں پڑھاتی ہوں. اور میری فیملی ہے. میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں. اور پریویس میرا بینکنگ ایکسپیرینس تھا جو کہ میں نے لیو کر کے پھر اسکول جوائن کر لیا تھا. اب ریحان اسکول میں ہوں. اوکے, تو آپ ریحان اسکول کا جو آپ نے بتایا آپ ریحان اسکول اکیڈمی میں پڑھتی ہیں. جی میں آن لائن اکیڈمی میں ایکچولی ہوتی ہوں, فزیکل میں نہیں. اوکے میں تو کیونکہ سعودیہ آپ میں کو ہوتی ہوں تو آن لائن. اوکے, تو آپ کو آن لائن اکیڈمی کا کس طریقے سے پتہ چلا, آپ کو کس نے بتایا؟ ایکچولی آن لائن اکیڈمی کا میں بیسیکلی پہلے سے جانتی ہوں. 2 سال پہلے سے میں اسکرول کر رہی تھی تو سر ریحان کی اکیڈمی آ گئی سامنے. تو پھر مجھے کافی اچھا لگا, انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ کوئی ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جتنی بھی ہے یہاں پہ لوگوں کو سرچ کرنا, پہلے ٹائم میں ان سے کام لینا یا پھر ایڈمیشن, پھر یہ پرابلمس تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی اسکول بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو پھر میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا تھا, پھر اس کو بھی ایڈمیشن دلایا. اب میں نے خود اس کا حصہ ہوں. اوکے ماشاء اللہ. تو آپ کو ریحان آن لائن اکیڈمی میں جوائن کرتے ہوئے کتنے منتھ یا ویکس ہو گئے ہیں؟ ابھی تو مجھے میرے 2 منتھ کمپلیٹ ہونے والے لیول 1 کے. 1 ویک رہتا ہے بس کمپلیٹ ہونے میں, اور اوکے ریسنٹلی جوائن کیا. جی تو ماشاء اللہ. تو جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی جوائن کیا, تو اس کو کتنا منتھ ہو گیا ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں؟ میری بیٹی کو 4 منتھ فاؤنڈیشن لیول اس نے کمپلیٹ کیا, اور اب جو ہے وہ لیول 1 میں جانے والی ہے. اوکے ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں بیسیکلی؟ میں ملتان سے بلانگ کرتی ہوں اور رہتی میں سعودی عربیہ میں ہوں, ابہا میں. اوکے ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ میں پرماننٹ رہتی ہیں یا آپ ادھر بیسیکلی ادھر کی ہے؟ نہیں میں بیسیکلی یہاں کی نہیں ہوں. ویسے میں اقامہ پر رہتی ہوں. یہاں پر اقامہ والوں کو بھی پرماننٹ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ وزٹ پہ نہیں رہتے. تو میں اقامہ ہولڈر ہوں, تو ہم لوگ فیملی تو وزٹ پر نہیں ہوں. لیکن یہاں سے ریزیڈینسی یہاں کی پیدائشی نہیں ہے. میں 6-7 اوکے سال ہو گئے. ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کا پتہ چلا, تو آپ کو لگتا ہے جب ہم لوگ ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں شفٹ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ڈفرینس ہوتی ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنا, ان چیزوں کو سیکھنا. وہ ایک دن میں بندہ نہیں سیکھ سکتا اور نہ اس کو آ سکتا ہے. تو جو آپ کا فرسٹ ڈے تھا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں؟ اوکے سوری میں نے اسے فنش کر دیا. ایکچولی ایسے ہے کہ میرا ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایکسپیرینس ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ہے. میں واقعی اپنے کور آف ہارٹ سے کہہ رہی ہوں, کیونکہ اسکول جوائن کرنے کے بعد مجھے اچھا فیل ہوا. میں فریش بھی فیل کرتی تھی. میں اسکول بھی جاتی ہوں لیکن یہاں پہ بھی مجھے بیسیکلی میں جب پہلے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو وائی. اب میں یہ کمپیوٹر یہ ساری چیزیں میں بڑی شوق سے کرتی ہوں, بڑے انٹرسٹ سے کرتی ہوں. مجھے پسند ہے یہ کام کرنا, انٹرسٹ ہے. باقی obviously آپ جانتی ہیں میرا اسٹارٹنگ ہے تو لرننگ فیز ہے, تو چیزیں سیکھ بھی رہی ہوں اور کر بھی رہی ہوں. جی ماشاء اللہ. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے والد آپ کے جو امی ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میرے امی ابو بیٹا وہ ٹیچر تھے اور ریٹائرڈ ٹیچر ہے میرے فادر. میری امی اسٹل اسکول میں پڑھاتی ہیں. شی از 55 years old, اور وہ بھی ملتان میں ہوتی ہیں. اور باقی بہن بھائی ابو سی بات ہے وہ بھی اپنے ڈفرینٹ کنٹریز میں سیٹلڈ ہے. اور پھر میں سعودیہ میں ہوتی ہوں. میری ایک اور بہن بھی سعودیہ میں ہوتی ہے, مدینہ میں. بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. میں باقی ملتان میں. ماشاء اللہ. تو میرا سجیشن ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا راز کیا ہے, کہ اپنی زندگی میں کیا کامیابی کا راز ہے جو آپ یہاں تک آ کے پہنچی ہیں؟
कामयाबी के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में कोई टफ टाइम आ जाता है, तो हमें उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सबकी लाइफ में आते हैं, एक मैं नहीं, सबकी लाइफ में यानी टफ टाइम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल भी करनी चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे सरिहान की है, अगर हाउस वाइफ्स हैं, फीमेल हैं, घर में होती हैं, तो उनको अवेल करना चाहिए, और मेहनत तो पहली शर्त है। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार लम्हा जो आपको अभी तक याद रहे? ज़िंदगी का यादगार लम्हा है, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपना चाइल्डहुड बहुत पसंद है, और उसके बाद मैं इस्लामाबाद में काफ़ी मेरी एजुकेशन वहाँ की है, और तो मैं वो टाइम भी बहुत एंजॉय किया यूनिवर्सिटी में, और इस तरह से हॉस्टल वगैरह में और फ्रेंड्स के साथ। तो लाइफ आप शादी के बाद प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इंसान की लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल लेवल वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो वाली बात नहीं होती जो बेटा एजुकेशन में होती है। सबके साथ ही ऐसा होता है, वो मेंटली तौर पर फ्री होते हैं, बेशक स्टडीज होती है, सब कुछ होते हैं, लेकिन मेंटली फ्री होते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सऊदी अरब में कब से रह रही हैं? मैं 6-7 साल हो गए। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सऊदी अरब की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? सऊदी अरब यहाँ पर पीस है, सुकून है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पसंद करेंगी वो तो जाहिर दो ही चीजें, एक मक्का और एक मदीना। और बाकी तो ऐसा ऑब्वियस ही बात है, अपना कंट्री अच्छा लगता है, लेकिन ये दो चीजें हैं जो यहाँ की यूनिक है पूरी ऑल वर्ल्ड मुसलमानों के लिए, लेकिन यहाँ सुकून है, ये भी है। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ना डेली रूटीन के बारे में अगर हमारे व्यूअर्स को बता दें, अपनी डेली रूटीन शेयर कर दें। डेली रूटीन तो मेरी कुछ अजीब सी है, टफ सी है, ऑब्वियस सी बात है। सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे, फिर उसके बाद मैं 6:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, नाश्ता वगैरह करके और सारा कुछ करती हूँ। स्कूल से 12:30 बजे वापस आ जाती हूँ, 12:30 छुट्टी होती है और 1 बजे मैं घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद ज़ाहिर फ्रेश होती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर कुछ लोगों के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो कंडक्ट करती हूँ। उसके बाद यही का काम करती हूँ, शाम को ये कि मेरी क्लासेस होती हैं, खाना बीच में मीनवाइल मुझे बनाना पड़ता है, ऑब्वियसली घर को भी देखना पड़ता है। फिर मेरी इशा हो जाती है, क्योंकि मेरी 8 बजे क्लासेस ख़त्म होती हैं, आपके 10 होते हैं, मेरे 8 होते हैं। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं फिर स्कूल का देखती हूँ कि कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो देखना पड़ता है, 1 घंटा उसमें लगता है। फिर उसके बाद प्लान वगैरह करना पड़ता है मॉर्निंग का, फिर उसके बाद बेटा मैं सो जाती हूँ 10 बजे ऑलमोस्ट, ओके फिर तो सुबह मेरा वही रूटीन है। ओके, तो सऊदी अरब में और पाकिस्तान में लाइक उधर कितना टाइम का डिफरेंस है? 2 आवर्स का है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या टाइम हो रहा है अभी? अब हमारे पास होने 3:46। आपके 3:46 है, मेरे 1:46 है। ओके ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब उधर सऊदी अरब में लाइक जब आप शिफ्ट हुई तो आपको कैसा लगा उधर? सऊदी अरब वैसे अगर मक्का मदीना में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, मदीना में ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे आपको पाकिस्तानी जद्दा वगैरह में भी, और मक्का साथ हो जाता है जद्दा के, मुझे वो भी बहुत पसंद है। लेकिन स्पेशली मैं यहाँ आभा में रहती हूँ। आभा ऐसे है बेटा जैसे पाकिस्तान का मरी हो, ये सऊदीया का मरी है। यहाँ पे 28 टेम्परेचर, गर्मियाँ नहीं आती यहाँ पे, यानी गर्मी पड़ती नहीं है। वैसे बाकी सारे एरियाज हॉट है, लेकिन जहाँ पे जो है ना गर्मी नहीं पड़ती जहाँ मैं रहती हूँ। ओके तो तो आप जी जी। तो जैसे कि आप बोलते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में गर्मी है होती है, तो वहाँ पे सऊदी अरब में अभी कैसा मौसम है वहाँ पे लाइक? अभी बेटा यहाँ पे तो गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। गर्मियों में भी पसीना नहीं आता, तो आप उसको सोचिए सर्दियों में या मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कैसी सिचुएशन होगी। गर्मियों में भी पसीना नहीं आता, दोपहर के टाइम भी पसीना नहीं आता, धूप में बाहर खड़े भी पसीना नहीं आता। माशाल्लाह। हर वक्त प्लेजेंट, क्योंकि ये माउंटेन्स है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो जैसे अच्छा, मरी है हमारा, आई थिंक सो 3000 या 250 किलोमीटर ऊपर है, तो ये भी ऐसे ही है। तो आपको कंप्यूटर में कौन सा काम ज्यादा पसंद आता है, लाइक कौन सा काम आपको कंप्यूटर में करते पसंद आता है? मुझे वैसे कंप्यूटर का, वैसे एआई का, कंप्यूटर तो ऐसा वो भी मुझे अभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं है, एआई है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग।
क्योंकि ये काम थोड़ा इजी कर देता है आपको, अब फंसा ज्यादा नहीं देता। तो मुझे उसमें ये पसंद है कि चैट जीपीटी पसंद है, जेमिनाई बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बना के देता है, वो बहुत पसंद है, इमेजेस बहुत अच्छे बनाते हैं, तो मुझे ये एप्स पसंद है। ओके, तो अभी आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपको अपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में क्या क्या सीख लिया बेसिकली? क्या क्या सीख लिया है? मैं तो लेवल 1 का ऑब्वियस सी बात है, जो सारा आपका होता है वो सारा मैंने कर लिया है। अब इसलिए मेरी अब एंडिंग है ना, 2 मंथ कंप्लीट होने को है। तो लेवल 1 का साथ जैसे आपका कैनवा हो जाता है, जेमिनाई का यूज करना, सॉन्ग्स वगैरह कैनवा का इस्तेमाल करना, और ये सारी एप्स वगैरह का, और सब सोशल अकाउंट्स पर आप सोशल मीडिया पर आपके सारे अकाउंट्स होते हैं वो ओपन हुए हैं, उन पे आपके जो कन्वर्सेशन होती है ई के साथ वो सारी कंप्लीट हैं। बस इसी तरह से कुछ एप्स भी बनाई हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइक आपको अगर ऑनलाइन एकेडमी की क्लास के बाद आप लाइक कोई काम करती हैं, लाइक आप एक होता है ना फिजिकली में ये होता है कि अगर कोई आपको काम में फंस जाता है तो साथ कोई दोस्त, फ्रेंड्स, क्लासमेट, क्लास फेलो के साथ पूछ लेता है। लाइक ऑनलाइन एकेडमी में आप क्या करती हैं, लाइक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको किस तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर करती हैं? एक्चुअली अभी तक ऐसा कुछ खास आया नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में कुलीग्स के साथ थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर उनका अगर कोई हो, वैसे तो इतना नहीं, वो खुद बहुत नॉलेजेबल हैं, जो मेरे ग्रुप वाले हैं बहुत नॉलेजेबल है, मेरा इतना भी नहीं है नॉलेज। अगर कोई थोड़ी बहुत जो मुझे आइडिया हो तो थोड़ा बहुत बता देती हूँ उनको, लेकिन ऑब्वियसली अब इन काम से रिलेटेड जितना मुझे आता है उतने मेरे कुलीग्स को भी आता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा आता है, वो मास्टर बैठे हैं। तो इसलिए ग्रुप्स में बताने की तो इतनी बारी नहीं आती। अगर उनको, क्योंकि वो पहले से हैं, वो आईटी के हैं कुछ, और कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पहले से वो उनको है नॉलेज, काफ़ी नॉलेज है। तो मेरे एक्चुअली अगर कोई आया तो ऑब्वियस सी बात है मैं आप गाइडलाइन दे सकती हूँ। कोई कैनवा ओके, सीखना चाहे मैं सिखा सकती हूँ, सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाना चाहे, जीमेल्स बनाना चाहे, प्रॉम्प्ट देना चाहे, जेमिनी का इस्तेमाल करना चाहे, चैट जीपीटी का, ये सारे काम ऑब्वियसली बात है, फिर तो आते तो हैं। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में और जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं, लाइक जो जिसमें फिर दूसरी की तालीम दी जाती है, एआई से हट की तालीम दी जाती है, तो आपको उन स्कूलों में और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस नज़र आता है? एक्चुअली बेसिकली तो दोनों में हेल ऑफ डिफरेंस है। पता है क्यों? कंपैरिजन तो उनका किया जाता है, जिससे आप कहती हैं, आप ये पूछिए मुझसे कि इंटरनेशनल स्कूल का और नेशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? यानी वो एक कंपैरिजन मैं कर सकती हूँ, इनका तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। ये फील्ड ही और है, बिल्कुल अपोज़िट है, जो हम स्कूलिंग दूसरी करते हैं, ये स्किल है, वो स्टडी है। तो दोनों बिल्कुल अपोज़िट है एक-दूसरे के। तो इस वजह से इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकूँगी, लेकिन ये है कि अगर आपने स्किल सीखनी है तो आप रिहान एआई की तरफ आ जाएँ, यही कहूँगी, क्योंकि ये स्किल में बेस्ट है, स्किल बहुत अच्छी है। अगर स्टडीज़ करनी है तो आप ट्रेडिशनल स्कूल में जाइए, तो डिपेंड करता है ना लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों का एनवायरनमेंट, माहौल बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, क्योंकि स्टडीज़, नेचर ऑफ स्टडी बहुत डिफरेंट है दोनों की। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है मरियम, फ्रीलांसिंग वाली, जो आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में शायद पढ़ती होगी, अब लेवल 1 में जाएगी, फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लिया है। तो माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके मतलब आपसे आपने अपने घर को भी संभाला हुआ है, आप हाँ ऑनलाइन एकेडमी भी कर रही हैं, तो आप इन चीज़ों को आपने किस तरीके से लाइक मैनेज किया हुआ है? ऑब्वियसली अब मैनेज करना इतना आसान तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया हुआ, अल्लाह ताला करवा देते हैं, स्कूल भी है और घर भी है, बस मैनेज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है, तो हो जाता ओके, है। दैट्स। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने कितने इंटरव्यू कर लिए हैं और इंटरव्यू का आपने क्या सीखा, उनसे कोई खास बात? इंटरव्यू तो मैंने वैसे तो टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 एआई के कंप्लीट किए हैं, उससे काफ़ी माशाल्लाह। नॉलेज में इजाफा हो जाता है। आपको चीज़ों की टर्म्स और कुछ चीज़ें आपके, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश हमारी कोई मदर लैंग्वेज तो नहीं है, तो कुछ चीज़ें हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको नॉलेज हमें गेन होता है। और जो आप लोगों के जिस तरह से पर्सन से हैं, वुमेन से हैं इंटरव्यूज़, वो मेरे इतने नहीं हैं, लेकिन ये है कि जितने 11, 12
13 like that. ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सर रेहान का विजन और मिशन पता है कि उनका स्कूल बनाने का विजन और मिशन क्या है, उन्होंने इस रेहान स्कूल को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? रेहान स्कूल को तो उनका मिशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, बेसिकली बहुत अच्छा दिल रखते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और इसी सोच को आगे लेकर वो चल रहे हैं ताकि बच्चे उनके सीखें और मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जाए। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि रेहान को लाइक आप देखिए मेरा नाम क्या गया है बीरा सिक्स फ्रीलांसिंग वाली, तो अब होता है वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम अपने नाम के लिए वाला क्यों लगाते हैं, इसका आगे में क्या फायदा होगा? वाला वाली का कंसेप्ट तो उन्होंने वैसे एक डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, कुछ ऐसा हमें बाकी लोगों में देखने में नहीं मिलता। एक्चुअली सर ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे मुल्क में फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्लम्बर वाला है, मुझे प्लम्बर का काम करवाना है, तो मुझे नहीं पता प्लम्बर का काम कौन अच्छा लगता है, किसकी टीम अच्छी है। एक्सपेरिमेंट होगा, सही भी काम कर जाएगा, गलत भी काम कर जाएगा, लेकिन सर वाला वाली इसलिए लगवाते हैं जैसे बिजली वाला, सफाई वाला, फलाना फलाना, तो वो इसलिए करते हैं कि ताकि एक्सपर्ट्स ऐसे नहीं खुद नहीं होंगे, फिर नीचे टीम आएगी, तो ताकि लोगों को राब्ता करने में आसानी होगी कि ये लोग ये काम करते हैं, दे आर द बेस्ट। सो ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हमें उस गुर्बत को किस तरीके पे ख़त्म करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है? गुर्बत क्या इंडिविजुअल लेवल पर भी काफ़ी इफेक्ट करती है, वो हो सकता है वर्कआउट, लेकिन बेसिकली तो हुक्मरान जो हमारे बैठे हैं वो अपने लेवल पे काम करें, हम लोग अपने लेवल पे काम करें। लेकिन सर रिहान ने बीच में से एक और रास्ता इख्तियार कर दिया कि बच्चों को ट्रेन किया जाए। अब ना हुकूमत पे डिपेंड करें और ना ही बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को ले लेते हैं, यंग जनरेशन को ले लेते हैं ताकि ये कुछ कर लें और अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जाए। बस यही है, मोबाइल तो अब सबके पास है, सब कुछ है, लेकिन कोई यूज़ सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो बस इसका पॉजिटिव यूज़ करें और स्किल वगैरह सीखें, यही है ऑप्शन। अगर हुक्मरानों की तरफ तो अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सिचुएशन है फिर हम देख तो नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम्स है। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब पर हम ऑनलाइन अकेडमी में फर्स्ट जैसा तो आपको किस फैसिलिटेटर ने ट्रेन किया था, किसने आपको सिखाया था? एक्चुअली मेरी फैसिलिटेटर अभी सेम ही है जो मेरे बैच की है लेवल 1 की, वो है मिस रिहाना एजुकेशन वाली, वो हमें पढ़ाती हैं और माशाल्लाह शी इज़ वेरी नाइस लेडी और बहुत अच्छी मेंटर है। तो फिर मिस आपको गुलसाना भी थी, मिस गुलसाना भी। ओके माशाल्लाह। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको उनकी समझ आती है, लाइक बहुत बच्चे होते हैं कि उनको टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो समझ आता है नहीं है और बात का समझ आ जाता है, तो आपको उनका आता है नहीं? नहीं, वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह पढ़ाती हैं। फिर मैंने आपसे जैसे कहा कि मेरे ग्रुप्स में भी लोग बैठे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ट्रेन है माशाल्लाह से, तो वो लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन एज़ बज़ाते खुद मैम खुद बहुत नॉलेजेबल हैं और उनके पास नॉलेज है और वो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। और बच्चों की तरह हम जिस तरह बच्चे बाज़ औक़ात शाय होते हैं क्वेश्चन करने से, हम लोग तो बेटा कर लेते हैं ना। ओके हमें जो नहीं आ माशाल्लाह। रही, हम पूछ लेते हैं आंसर क्या है, ओके बताती हैं। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा इंटरव्यू का टाइम थोड़ा सा रह गया, तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई अपनी एजुकेशन के रिलेटेड कोई एडवाइस देना चाहें कि जो उनके लिए आगे हेल्प हो, तो उनके लिए अच्छा बने जो एडवाइस उनके, ताकि आप एडवाइस दे दें कोई हमारी ऑडियंस के लिए। जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि एजुकेशन बच्चे हासिल करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन को नेगलेक्ट कर दें, एजुकेशन को भी नेगलेक्ट ना करें। लेकिन जिस तरह होता है ना, आप कुछ परसेंटेज लेते जाएँ, ओके? ताकि आप एजुकेशन भी आपके हाथ में हो, लेकिन स्किल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल खाली एजुकेशन इतना रोल नहीं प्ले कर रही एज़ सच। आप पता नहीं कितने पेरेंट्स पैसा लगाते हैं और एंड में जाके 10,000 के लिए बच्चे नौकरी ढूँढ रहे होते हैं, बहुत दुःख की बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास स्किल ही नहीं थी, स्कूल स्किल नहीं दे रहा, स्कूल में कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है जिससे बच्चे लर्न करें और कुछ उनके अंदर हो, सिर्फ स्टडीज और रट्टा मार और ये सारा कुछ चल के फिर या डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर, और वो भी मुल्क में भरमार हो चुकी है और उनकी भी स्पेस नहीं दी।
بے شک ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں بچے ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اپنے آپ کو اپ ڈیٹ ضرور کریں اسکل کے ساتھ. اسکل بہت زبردست چیز ہے. اگر آپ یعنی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہے ارننگ کا، تو ایک اچھا باشندہ بننے کے لیے ملک کا، تو ضروری ہے آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. جی ماشاء اللہ. تو میڈم سونیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے شو میں اپنا قیمتی وقت دیا. تو سو یہ ناظرین، یہ ہے ہمارا انٹرویو میڈم سونیا. تو ضبط کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ہاں اسکول زندہ باد. خدا حافظ میڈم. اللہ